Very warm welcome to all the students of class 10th. My name is Ujjwal, and once again I will be taking your mathematics. And as we know, the running chapter is polynomial. We have already gone through many of the concepts of polynomial, like quadratic polynomial. We have seen how to factorize and how to obtain the zeros, and we have also establish the relation between the zeros of the polynomial and the coefficient of the variables, and we have also gone through the concept of cubic polynomials: ax cube plus bx square plus cx plus d. uh, Whatever the concepts we have studied by the time, today I am going to solve few sample problems for you all, and those problems will be quite helpful for all of you to doing the exercises related to those particular examples. So starting from the first example, the first example is saying find a quadratic polynomial in which sum and product of zeros are -3 and 2. See, in this question we are given with the sum of the zeros, that is -3, and product of the zeros, that is 2. And we already know that in quadratic polynomial we are having two zeros, because since it is a quadratic polynomial, therefore it will be having degree 2, therefore it will be having two zeros. We are getting into the solution, how we have to perform the solution. First of all, zeros are alpha and beta, and we are given with alpha plus beta. See, the two zeros we have already seen in the last video. The two zeros of quadratic polynomial are alpha and beta, and it is given that the sum of the zeros, yani alpha plus beta, is given to us -3. Similarly, we are given with the product of the zeros, that means alpha into beta, that is 2. Now we have studied in the last slide that any quadratic polynomial will be equals to x square minus sum of the zeros into x plus product of zeros. Means quadratic polynomial stands for x square minus alpha plus beta. Sum of the zeros is alpha plus beta, x plus product of zeros is alpha into beta. Now we have put down the values, whatever the alpha plus beta and alpha into beta are given to us. X square minus alpha plus beta is -3, x plus alpha beta is 2. X square minus into minus, this will become plus 3x plus 2. So students, this is the quadratic polynomial, x square plus 3x plus 2, which will be having the sum of the zeros -3 and product of the zeros is 2. Now let us take one example for our cubic polynomial. We will be getting into the cubic polynomial. See, this example I am taking for cubic one will be containing two type of concepts. एक बार हम लोग इसको सीधा सॉल्व करेंगे और एक बार इसको उल्टा सॉल्व करके ओरिजिनल क्वेश्चन तक ले आएंगे. Now we are having
a cubic polynomial 3x cube minus 5x square minus 11x minus 3. Show that three minus 1 minus 1 upon 3 are zeros of this polynomial. यहाँ पे क्वेश्चन ने हमसे क्या कहा हुआ है that there is a cubic polynomial 3x cube minus 5x square minus 11x minus 3, और 3 zeros are given to us, 3 minus 1 and minus 1 by 3. We have to prove that, or we have to show that these 3 zeros belong to this particular cubic polynomial. We can say that alpha is 3, beta is minus 1 and gamma is minus 1 upon 3. Since it is a cubic polynomial, the maximum degree is 3, therefore it will be having 3 zeros, alpha, beta and gamma. Now we have to show that कि 3 minus 1 और minus 1 by 3 इस polynomial के zeros हैं. तो ये प्रूफ करने के लिए हम लोगों ने क्या करना है कि 3 स्टेप में x की जगह पे एक बार अल्फा की वैल्यू पुटअप करनी है, एक बार बीटा की वैल्यू पुटअप करनी है और एक बार गामा की वैल्यू पुटअप करनी है. और कैलकुलेशन रिजल्ट अगर तीनों ही बार में जीरो आ जाता है तो वी कैन से दैट कि दीज आर द जीरोज. भाई जीरोज का मतलब क्या हुआ? जीरोज का मतलब ये हुआ कि इन वैल्यूज को अगर x की जगह पे बिठा दिया जाए तो वो पूरे हमारे पॉलिनोमियल को जीरो कर दे, तभी उनको हम जीरोस कहते हैं. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टेकिंग दिस 3 इन क्यूबिक पॉलिनोमियल पुट x इक्वल्स टू 3. हम सबसे पहले x की वैल्यू 3 रख के देखने जा रहे हैं. द पॉलिनोमियल वाज 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर minus 11x minus 3. Put the value of x, 3 into 3 cube minus 5 into 3 square minus 11 into 3 minus 3. 3 3s are 9 3s are 27, 3s are 81 minus 3 3s are 9 5s are 45 minus 11 3s are 33 and minus 3. See, these three terms are in negative, therefore all the negatives will be added and this one is in positive, so it will lie as it is. 45 plus 33 78, 78 plus 3, 78 plus 3 is 81 with minus sign. You can see here by putting the value of x as 3 we have got the result 0. Therefore we can say that key 3 is the 0 of this polynomial. Similarly we are going to put the value, put x equals to minus 1 this time, the second 0 we are taking. The polynomial was 3x cube minus 5x square minus 11x minus 3, 3 into minus 1 square minus 5 into cube. So minus 5 into minus 1 square minus 11 into minus 1 minus 3. See, minus 1 का क्यूब करेंगे तो we will get minus 1. Minus 1 into 3 minus 3. Minus 1 का स्क्वायर करेंगे we will get plus 1. Plus 1 into minus 5 minus 5. Minus 11 into minus 1 plus 11. 11 1s are 11 with positive sign, and this is minus 3. This is minus 3, this is minus 3. In total minus 6. Minus 6 and minus 5. In total minus 11. And this is plus 11. And the end result is
again 0. So we have shown that x equals to 3 and x equals to -1 are the zeros of the polynomial, this one. Now we are going to put the value of gamma here. x की जगह पे हम गामा यानी कि -1/3 को पुटअप करने जा रहे हैं. यहाँ पे हम x इक्वल्स टू -1/3 रखने जा रहे हैं. तो जैसे तो ओरिजिनल पॉलिनोमियल 3x³ -5x² -11x -3. Now 3 into -1/3 cube -5 into -1/3 square -11 into -1/3 and -3. देखिए नेगेटिव का क्यूब करेंगे तो वो नेगेटिव ही रहने वाला है. 1 का क्यूब करेंगे 1 रहेगा. 3 का क्यूब करेंगे जिससे बिकम 27. तो 3 into -1/27 माइनस का स्क्वायर करेंगे दिस विल बिकम प्लस पॉजिटिव, और स्क्वायर 3 का करेंगे इट विल बिकम 9. -5 into 1/9 -11 into -1 plus 11/3 and this is -3. 3 से हमने इस 27 को कैंसिल किया 9 टाइम्स. दिस विल बिकम -1/9. 5 1s are 5/9 -5/9 plus 11/3 -3. अब यहाँ पे सबके पास डिनोमिनेटर है. आई एम पुटिंग 1 ओवर हियर सो दैट दिस विल बिकम -3/1 एंड उसकी वैल्यू में भी कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि वी कैन पुट 1 एज डिनोमिनेटर विदाउट गिविंग एनी चेंज. 9 will be the LCM. This will become -1 -5 plus 3 से 9 में डिवाइड किया we will get 3, और ये 3 into 11 किया we will get 33. 1 से 9 में डिवाइड किया 9 टाइम्स. 9 3s are 27 with -9. See, -1 and -5 will become -6. -6 and -27 will become -33 and this is +33. +33 -33/9 0/9 that will be equals to 0. So we have proved that therefore 3 -1 and -1/3 are zeros of given polynomial. हमको यही प्रूव करना था. हमें सिर्फ ये दिखाना था कि इन तीनों ही वैल्यूज को अपने क्यूबिक पॉलिनोमियल में अगर हम पुटअप कर दें तो हमारे पास वैल्यू 0 आ जा रही है. देखिए अब इसी क्वेश्चन को मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं. कॉन्सेप्ट कोई दूसरा है. हमारे पास अल्फा बीटा गामा की वैल्यू दे रखी है, ठीक है, और हमसे कहा गया है कि अगर अल्फा की वैल्यू इतनी है 3, बीटा की वैल्यू -1 है और गामा की वैल्यू -1/3 है, तो इससे एक क्यूबिक पॉलिनोमियल बनाइए. यानी इस बार हमारे क्वेश्चन में हमको ये नहीं दिया हुआ है. हमें क्या चीज गिवन है? वी आर गिवन विद देयर आर 3 zeros ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल अल्फा बीटा एंड गामा दैट आर 3 -1 and -1/3 and we have to make the cubic polynomial with the help of these 3 zeros. Forming ये जो कॉन्सेप्ट है, दिस कॉन्सेप्ट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन लास्ट वीडियो. ठीक है, अगर नहीं ठीक से देखा था प्लीज गो थ्रू दैट पर्टिकुलर वीडियो वंस अगेन. फॉर्मेशन ऑफ क्यूबिक
पॉलिनोमियल। कॉन्सेप्ट क्या कहता है? एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। यानी हमें ये तीन चीज़ें चाहिए होंगी, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा चाहिए होगा, और हमें अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा भी चाहिए होगा। एक एक करके हम अल्फा बीटा गामा की वैल्यू गिवन है, हम इन तीनों की वैल्यूज निकालने की कोशिश करते हैं। नाउ सी, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा will be equals to alpha is 3, beta is -1, gamma is -1/3. Take the LCM 3. This will become 9 minus 3 minus 1. -3 और -1 मिलकर के हो गए माइनस का 4। 9 में से 4 को माइनस किया तो आ गया 5/3। दिस इज द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। एक वैल्यू हमारे पास आ गई। उसके बाद हमें अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा चाहिए होगा। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल्स टू अल्फा की वैल्यू 3, बीटा की वैल्यू -1 प्लस बीटा गामा, बीटा की वैल्यू -1 और गामा की वैल्यू -1/3 प्लस गामा अल्फा, गामा की वैल्यू -1/3 और अल्फा की वैल्यू 3। दिस विल बिकम 3 इंटू -1 -3 प्लस, अच्छा यहाँ पे -1 इंटू -1/3, माइनस में माइनस प्लस 1/3, फिर ये प्लस इंटू माइनस माइनस, 3 से ये 3 कैंसिल, सिर्फ 1 बच गया। नाउ टेक द एलसीएम 3, दिस विल बिकम -9 प्लस 3 प्लस 1 एंड -3, -9 -3 मिलके हो गए -12 और प्लस का 1/3 -1/11/3। ये तीसरी वैल्यू आ गई हमारे पास, सॉरी दूसरी वैल्यू है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा की। उसके बाद जो हमें चाहिए है वो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा है। थर्ड वैल्यू अल्फा बीटा गामा इक्वल्स टू अल्फा की वैल्यू 3, बीटा की वैल्यू -1 और गामा की वैल्यू -1/3। 3 से 3 कैंसिल, -1 इंटू -1 +1। ये हमारे पास तीसरी वैल्यू अल्फा बीटा गामा की भी आ गई। Now we know the concept, we know the method, we know the formula of forming a cubic polynomial. अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 5/3। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा की वैल्यू हमारे पास है -11/3 और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा की वैल्यू हमारे पास है 1। अब इन तीनों ही वैल्यूज को ये और ये put all the three values in this given formation method for our cubic polynomial. Now see, this is x cube then minus alpha plus beta plus gamma is 5/3 then x square, फिर प्लस लगा हुआ है, put the plus over here. अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज -11/3, then minus sign
अच्छा एक्स यहाँ पे लगा दिया, माइनस साइन लगाया, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज 1, पुट द 1 ओवर हियर। पूरे के पूरे पॉलिनोमियल में हम 3 से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। क्यों 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं सर? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि डिनोमिनेटर 3 रखा हुआ है, तो हम दोनों ही जगह पे पूरे पॉलिनोमियल में हर एक टर्म पे 3 से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। दिस विल बिकम 3x क्यूब माइनस 3 इंटू 5/3 एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस 11/3 एक्स माइनस 3 इंटू दिस इज 1। दिस विल बिकम 3x स्क्वायर, 3 से 3 कैंसिल हो गया, माइनस का 5x स्क्वायर, 3 से 3 कैंसिल हो गया, प्लस इंटू माइनस, माइनस का 11x, 3 1 जा 3 विद माइनस साइन। ये हमारे पास पॉलिनोमियल बन गया। ऐसा पॉलिनोमियल बना जिसके के जीरोस 3, -1 और -1/3 होंगे। हमने उन्हीं तीनों को लेकर के हेल्प में और हमने ये पॉलिनोमियल बनाया। अब इसके पहले जो क्वेश्चन अभी सॉल्व कर रहे थे क्यूबिक पॉलिनोमियल में, जो पॉलिनोमियल हमको गिवन था, अब जरा दोनों को मैच करिए। 3x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 11x माइनस 3 यहाँ पे मैं आपको ये बता रहा था कि अगर आपको अल्फा बीटा गामा की वैल्यू गिवन हो तो आप उससे क्यूबिक पॉलिनोमियल कैसे बनाएंगे। लिटिल मूविंग more further, getting into the another example. See, the example I am going to take is talking about degree 4 polynomial. I am going to take one example of degree 4. अभी तक हम लोगों ने cubic solve किया, quadratic solve किया, but this question I am going to take for degree 4 polynomial. It will be having 4 factors, or you can say that it will be having 4 zeros because the maximum power is 4. Question is saying there is a polynomial 2x power 4 minus 3x cube minus 3x square plus 6x minus 2 and root 2 minus root 2 are the 2 zeros of this polynomial. We have to find out 2 other zeros. Question में कहा गया कि this is the polynomial 2x power 4 minus 3x cube minus 3x square plus 6x minus 2. इसके 2 जीरोस हमें पता है, √2 है और माइनस का √2 है। 2 जीरोस हमें पता है, जैसा कि हम जानते हैं मैक्सिमम पावर यानी कि डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 4, तो इसके 4 जीरोस होने चाहिए। 2 जीरोस हमें गिवन है, हमें 2 जीरोस और फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, चलिए तो ऐसा करते हैं कि हमको जो चीज़ गिवन है हम उसको पकड़ते हैं। पहले हमको गिवन है कि x की वैल्यू सर √2 हो सकती है। भाई x की वैल्यू हम √2 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, 0 है। और सर इसके साथ साथ x की वैल्यू माइनस का √2 भी हो सकती है। बाकी x की 2 वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी है, हम इन्हीं दोनों की मदद उठाने जा रहे हैं। ब्रिंग दिस √2 by transposing it equals to 0 and x plus √2 equals to 0. हम इन दोनों को ही आपस में मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। x minus √2 x plus √2. This is a plus b and a minus b. a plus b, a minus b, अगर आप लोगों को फॉर्मूला याद है then it will be fantastic. a plus b, a minus b is a square minus b square. a square minus
दिस इज बी स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2। हमको जो दो गिवन जीरोस थे उनकी मदद से हमने एक पॉलिनोमियल बना लिया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना लिया, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बिकॉज टू टर्म्स आर हियर एंड द मैक्सिमम पावर ऑफ द एक्स इज 2, therefore we can say that it is a quadratic polynomial। अब हम क्या करने जा रहे हैं कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से इसमें डिवाइड करेंगे तो हमको एक नया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिलेगा। भाई यहाँ पे मैक्सिमम पावर 2 आई हुई है, इससे डिवाइड करेंगे इस मैक्सिमम पावर 4 में, तो 4 में 2 से डिवीजन करेंगे तो 2 बचेगा ना अपने पास, 2 टाइम्स डिवीजन आएगा, कोशेंट तो 2 हो जाएगा। यानी जो एक दूसरा पॉलिनोमियल हमें मिलेगा कोशिएंट के फॉर्म में वो क्वाड्रेटिक होगा, हमें उसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो बाकी के दो जीरोस भी हमें मिल जाएंगे। क्या करने जा रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2 से डिवाइड करने जा रहे हैं 2x पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। और अभी इस डिवीजन में आप देखेंगे कि माइनस √2 और √2 इसके जीरोस थे, इन्हीं दो की मदद से बना हुआ ये पॉलिनोमियल है। अगर ये दोनों जीरोस थे जिसका मतलब कि एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस कंप्लीट पॉलिनोमियल, और फैक्टर होने का मतलब कि रिमाइंडर हमारे पास 0 ही बचेगा, अभी रिमाइंडर 0 आ रहा है। हमें एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना है किस चीज में, 2, सबसे पहले तो हमें 2 चाहिए होगा। एक्स की पावर 4 बनाना है, पावर 2 मिली हुई है तो पावर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको। 2x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, दिस विल बिकम 2x पावर 4। 2x स्क्वायर इंटू 2 4x स्क्वायर, एक स्क्वायर की टर्म ये रखी हुई है, माइनस 4x स्क्वायर। माइनस क्यों लगाया सर, क्योंकि यहाँ पे 2 माइनस में है और ये 2 प्लस में है, तो प्लस इंटू माइनस करेंगे तो माइनस में आएगा। सब्ट्रैक्शन के लिए गए, साइन चेंज होगा, दिस विल बिकम माइनस, दिस विल बिकम प्लस, ये कट गया। बचा क्या, माइनस 3x क्यूब बच गया, 3x स्क्वायर माइनस में और 4x स्क्वायर प्लस में, तो प्लस का एक x स्क्वायर बच गया, प्लस 6x बचा हुआ है एंड 2 इज ऑल्सो लेफ्ट ओवर। नाउ वी हैव टू मेक माइनस 3, यहाँ पे क्या है 1 है, यहाँ पे माइनस 3 है, तो माइनस 3 से सबसे पहले तो मल्टीप्लाई कर दिया। एक्स क्यूब मिला हुआ है, सॉरी एक्स स्क्वायर मिला हुआ है, एक्स क्यूब बनाना है तो एक बार एक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए। माइनस 3x इंटू एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर, माइनस 3x इंटू एक्स स्क्वायर इज माइनस 3x क्यूब, माइनस 3x इंटू माइनस 2, तो माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6x प्लस में। सब्ट्रैक्शन के लिए जाएंगे, साइन अपोजिट हो जाएंगे, दिस विल बिकम प्लस, माइनस था तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये कट गया प्लस माइनस में, और 6x भी प्लस माइनस में है, खत्म हो गया। बचा कौन कौन, प्लस में एक्स स्क्वायर बचा हुआ है और माइनस का 2 बचा हुआ है। एक्स स्क्वायर माइनस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 2, यानी प्लस 1 टाइम डिवाइड कर दीजिए तो 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 वी विल गेट एक्स स्क्वायर माइनस 2, साइन अपोजिट किए, द रिमाइंडर इज 0। यानी जो आपका पॉलिनोमियल 2x पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 है, एक्चुअली दैट इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई, ये क्वोशिएंट आया, इसी से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये पॉलिनोमियल मिलेगा। 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। देखिए दो जीरोस तो हमको पहले से दिए हुए थे, ये बना रखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2, हम इसको सॉल्व कर लें तो हमको फिर से 2 जीरो मिल जाएंगे। 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1,
2 इंटू 1 2। इस -3 को यानी मिडिल टर्म को दो ऐसे पार्ट करने हैं जिनका मल्टीप्लीकेशन +2 आए और एडिशन -3 आ जाए। तो 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 1, 2x हमने कॉमन निकाला तो x माइनस 1 बच गया, यहां से -1 कॉमन निकाल रहे हैं, x माइनस 1 बच गया। x माइनस 1 दोनों के पास है, हमने x माइनस 1 को ही कॉमन निकाल लिया, तो दूसरे ब्रैकेट में क्या बचा 2x माइनस 1। अब दो फैक्टर हमें मिल गए, क्वाड्रेटिक था इसलिए दो फैक्टर आए। फर्स्ट टाइम हम कहेंगे कि इफ x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 देयरफॉर x इक्वल्स टू 1, और इफ 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 तो 2x इक्वल्स टू 1, तो x इक्वल्स टू 1/2। तो दीज आर द टू अदर जीरोस of the polynomial. तो 4 zeros of the polynomial are √2, -√2, 1 and 1/2. So this is the entire thing I was planning to tell you, to describe you properly. I hope this video will help you a lot to do your exercises, and this will also be helpful to perform the solutions for your homework related to chapter number 2 polynomial, and we have already done our real numbers. So students, by the time, wish you very best of luck. Stay home and stay safe.